ना कर सके वो छोटे ही तो है, और जो कर सके वो बड़ा। नहीं तो काय का बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेड़ का जो ना पंछी को छाया ना फल लगे थी दूर, क्या मतलब बड़ा हो गया तो कर ही नहीं पाते है, बोले हाँ बोला समझा ही नहीं कैसे, है ना। तो तुम छोटे कहलाए। अब इनमें से पूछ लो, ये कोई भी जवाब देते हैं। What was the last interactive sentence given to you the day before yesterday? Last interactive sentence given to us the day before yesterday was देखो बराबर हो गया ना। अब तुम यहीं बैठना, क्योंकि तुम कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा एटम बम चला देते, तो वहां कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा, और दीदी से भी मिल सकता है। अब सिंपल क्वेश्चन आगे पढ़ा है, उससे करिए तुम। Excuse me. Yes. What was the last interactive sentence? The last interactive sentence was the one. Excuse me, Didi. उनका हो गया। Excuse me. What was the last interactive sentence? The last interactive sentence. What was the last interactive sentence? What was the last interactive sentence? बेटा एक मिनट रुकना। नीता, गुड इवनिंग नीता। अब तुम्हें जवाब देने के लिए यहाँ पे ये जो माइक का निशान बना है उसको टच करके अनम्यूट करना होगा, तब तुम्हारी आवाज हम तक पहुंचेगी। और तुम दिखाई भी नहीं दे रही हो, दिखाई दोगी और बोल दोगी, होंठ भी हिल जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम बोल रही हो। लेकिन अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि नीता वहां मौजूद है कि नहीं, केवल नीता लिखा हुआ दिख रहा है। गुड इवनिंग सर। ये कैमरा ऑफ क्यों रखा हुआ है नीता? क्या ऐसी स्थिति में नहीं हो कि दिखाई दे सको? सर एक्चुअली अभी मैं अभी ऑन कर रही हूँ। ठीक है जी सर। हमारे सिवा तुम्हें और कोई नहीं देखेगा, सारे बच्चे उस तरफ बैठे हैं, तुम अच्छी लग रही हो। जी सर, अभी क्या मैंने ऑन नहीं किया, बस मैं सेटिंग से कर ही रही हूँ ऑन। हाँ करो जरा ऑन। दूसरे नंबर पे रहता है, इसको टच करो, ऑन हो जाएगा वो रेड लाइन के बाद। हाँ गुड। अब मोबाइल को कहीं एक लगाने के लिए कुछ ढूंढ लेना, किताब वगैरह से ऐसे टिका के, लेकिन मोबाइल को हॉरिजेंटल रखना। ये वर्टिकल आता है, ये हॉरिजेंटल ऐसा। हाँ। तो तुम्हें बोर्ड बड़ा दिखाई देगा, और हमें डबल टैप कर लेना तो हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा दिखाई देगा। ओके सर। डबल टैप। अब म्यूट कर लो तुम और सुनते जाना, ठीक है? म्यूट। हाँ ये, हाँ कुछ नेक्स्ट बच्चा। Good morning, good night, good evening. What was the last interactive sentence? Speak up, please. What was the last interactive sentence? एक्सक्यूज मी बोलो, शायद वो समझ नहीं। Good morning, good evening. नहीं तुम लोग मत घबरा जाएगा ना बच्चा, बोलो इसके। Excuse me. What was the last interactive sentence? The last interactive sentence is sorry. एक मिनट तुम बोल बात। The last interactive sentence was Namdikon. एक बार हिंदी कर लो।
नहीं आता है कोई बात नहीं। अब तुम क्वेश्चन करो उस छोटे बच्चे से। क्वेश्चन के लिए इनको मदद करो तो What was the last interactive sentence? interactive sentence? Interactive. Interactive. Yes, last interaction. Sorry. तुम करो। The last The last interactive sentence was Ramji got it. तो दीदी से the last interactive Ah, sentence. sorry. What was the last interactive sentence? The last interactive sentence was round the corner. अब अपन दूसरा राउंड खेलते हैं उसको छोटे बच्चों को छोड़ देंगे बच्चे को। What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. Excuse me. Yes, what was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. Sorry. Nothing succeeds like success. What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. Yes. What was the last idiom? Last idiom was nothing succeeds like Sorry, come on. okay. The last idiom was nothing succeeds like success. Okay. What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. Okay. What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like idiom. Sorry. Like so. He wanted the water. The last idiom was nothing succeeds like so success. What was the last idiom? The last idiom is nothing Sorry. The last idiom was like succeeds. Sorry. Nothing succeeds like success. Come again. Come on. Please. Nothing succeeds like success. Now again this full sentence. The last idiom was nothing succeeds like success. What was the last idiom? लोग भी कहीं पर निकालने कहीं पर निकालना. What was the last idiom? The last idiom was success. What was the last idiom? The last idiom was Last idiom was nothing succeeds nothing succeeds like like success. success. प्रश्न पूछ सकते हो उस बच्चे से। What was the last idiom? Last idiom. Last idiom. Sorry. The last idiom was nothing succeeds like success. Progress. क्वेश्चन कर लोगे बेटा क्या ही करवा लो। What was the last idiom? What was the last idiom? The last idiom was nothing succeeds like success. बच्चों तुम नए आए हो तो तुम्हें हम बता रहे हैं और इसी बहाने इसमें भी एक दीदी नई आई है उनको भी बता रहे हैं। ये देखो ये लिखा है टुडेज इंफेक्टिव इसका मतलब है आज का बोलचाल का वाक्य। ये लिखा है टुडेज इडियम आज का मुहावरा या आज की कहावत। तो हम इनको रोज एक मुहावरा देते हैं और एक बोलचाल का वाक्य।
ऊपर जो लिखते हैं वो इंटरेक्टिव सेंटेंस होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला। नीचे जो लिखते हैं वो एक मुहावरा होता है। मुहावरा तो भी समझते हो हिंदी में, वो होता है। तो अभी हमने इनसे चेक किया कि पिछली बार हमने क्या इनको दिया था, तो इन्होंने बताया। अब उसके हिसाब से हम आगे का देंगे। तो ये आपको कहाँ लिखना है, वो अभी जगह आपने निर्धारित नहीं की, ये दीदी भी नहीं है, इन्होंने भी निर्धारित नहीं की, ये इसके अंदर है मोबाइल में। उनका भी आज पहला दिन है, तुम्हारा भी आज पहला दिन, तो हम दोनों को समझा रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें लिखने से रोका है। तुम भी अभी नीता कुछ मत लिखना, काफी से समझ लेना कि कौन सी चीज कहाँ लिखना है। तुम भी तुम परसों से लिखना शुरू करो या कल से लिखना शुरू करो, आज सारी चीजें अच्छे से देखना। तो तुम इनकी मदद लेना या इनकी मदद लेना, ये अच्छे से आपको बताना। बस आप पेज बस मोड़ लेना, उस हिसाब से लिखना बाद में शुरू करना, लेकिन कितने पेज कहाँ मोड़ना है वो ये अच्छे से बता दें। बाकी की हेडिंग हम आपको समय आगे लिखवा। अब हम जो पूछ रहे हैं तुम उसमें अपना नीता तुम भी जवाब देना वहां से अनम्यूट करके। हम जब पूछ रहे हैं ये बच्चे सब एक साथ जवाब देंगे, तुम भी जवाब देने की कोशिश करना। बच्चों, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? पिछली क्रिया कौन सी थी? नीता तुम भी ये चीज सुन लो और तुम भी सुन लो बेटा, जो कुछ हम यहाँ लिख रहे हैं वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है, ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है। तो कोई चीज अगर छूट भी जाती है तो तुम YouTube पे जाके देख सकते हो, है ना? कभी भी देख सकते हो, देखा तुम भी कभी भी देख सकते हो, पुराने वीडियो भी देख सकते हो। बच्चों, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर प्रयोग करना? What should be the second form of use? हमने ऐसा निशान लगाया, आपको नहीं लगा, आपको भी नहीं लगाना है। आपको ये पूरी स्पेलिंग लिख के उसमें डी लगा, पूरा यूज लिखना है, डी लगा। What should be the third form of use? हम ऐसा निशान लगा दें, तो ये सेकंड और थर्ड एक साथ पूरी स्पेलिंग। What should be the verb for सदुपयोग करना? should be सदुपयोग करना। Utilize, या में बड़ी की मात्रा यू, टा में बड़ी की मात्रा यूटी, ला में आगे की मात्रा ई छोटा ई, जा में नीचे छोटा यूटिलाइज। सदुपयोग करने का मतलब होता है किसी वस्तु को अच्छे से उपयोग करना, और यूज करने का मतलब होता है कैसे भी उपयोग करना, और सदुपयोग का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से यूज करना। आगे जब तुम्हारे ऊपर ये क्रिया आएगी और तुम सेंटेंस बनाओगे तो क्लियर होता चला जाएगा। What should be the second form of utilize? second form of utilize should be utilized. And what should be the third form of utilize? The third form of utilize should be utilized. आज हम केवल दो क्रियाएं दिखा रहे हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। तुम लोगों को गेट गोइंग नाम का इंटरेक्टिव सेंटेंस मिला है? तुम में से किसी को याद है बी चैप्टर का वीडियो देखा होगा, तो उसमें गेट गोइंग का कहीं उल्लेख किया है हमने? ये पोस्टर दिखाया था, अब दोबारा भी दिखाया।
हाँ, उसमें भी दिखाया है, वीडियो में भी। तो चलो वही एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, इंटरेक्टिव सेंटेंस। हैव यू रिटन द फर्स्ट वर्ड? Yes, sir. We have written the first word. क्या आपने पहले वाली लिख ली है? हाँ सर, हमने पहली बार ही लिखी है। तो मैं भले ही ना लिखी हुई, लेकिन तो मैं आंसर लिखी। स्पोकन क्लास है तो इसको तो चलाना शुरू कर दीजिए, इसको चलाना शुरू कर, इसको कल से चलाना। हैव यू रिटन द फर्स्ट वर्ड? Yes, sir. We have written the first word. तुम्हें भी बोलना है नीता, और तुम्हें अनम्यूट करके बोलना है, लेकिन तुम म्यूट कर अपने माइक को बंद रखे हो और अपने चेहरे को भी नहीं दिखा रही हो, तो ऐसे में हमें समझ में थोड़ी आएगा कि तुम वहां हो भी कि नहीं। Should I erase this? Yes, sir. Erase please. ताकि तुम बोल रही थी कि उसको भी आता है सब कुछ और तुम्हें भी आता है, तुमने यूज किया। वो खिड़की बंद करके बैठी हुई है, म्यूट पर बैठी हुई है, तो हमें कुछ समझ में थोड़ी ना आया कि उसको कुछ तक बात पहुंच रही है। Have you written the second one? Yes, sir. We have written the second word. Should I erase? Yes, sir. Erase please. आज हम टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस पहले दे रहे हैं। इंटरेक्टिव सेंटेंस हम ऊपर लिखते हैं, और इंटरेक्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है बोलचाल का वाक्य जो हमारे रोज की जिंदगी में काम में आता है, और उसमें जो शब्द रहते हैं उसका अर्थ उससे बिल्कुल भिन्न निकलता है, बिल्कुल अलग निकलता है। ये आप जानते हो, इतने दिनों में समझ गए। तो टुडेज इंटरेक्टिव सेंटेंस आप लिखिएगा। This is today's interactive sentence, get going. Can anybody guess the meaning of get going? हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग गैसिंग कर लोगे, लेकिन इन्होंने काफी निकट की गैसिंग कर ली। तुम अपनी शेयर थोड़ी इस तरफ कर लो बेटा, वहां बहुत सेट है। इसके दो अर्थ होते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पहले हम पॉजिटिव अर्थ देख रहे हैं, सकारात्मक भी होता है। किसी का हौसला बढ़ाने के लिए हम इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, कम ऑन गेट गोइंग। खेल वगैरह में हम बोल सकते हैं कम ऑन गेट गोइंग, बढ़ते चलिए। तो पहले हम पॉजिटिव यूज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ निशान लगा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि हम दूसरा भी देंगे, फिर हम वो नेगेटिव वाला यूज करेंगे। नीता यहाँ से इसका राउंड शुरू होगा, ये एक लाइन से इसको बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार आपको सुनाई देगा, 14वीं बार आपको बोलना है, एज इट इज बोलना ही है। गेट गोइंग बढ़ते चलो। गेट गोइंग, Get going बढ़ते चलो। Get going. बढ़ते चलो। Get going बढ़ते चलो। Get going. बढ़ते चलो। गेट गोइंग बढ़ते चलो। Get going बढ़ते चलो। गेट गोइंग बढ़ते चलो। गेट गोइंग बढ़ते चलो। गेट गोइंग बढ़ते चलो। Get going बढ़ते चलो। ये जो आखिरी में आवाज आई नीता, इस बच्चे का आज पहला दिन है, कौन सी क्लास में बेटा? ही इज इन 9th स्टैंडर्ड। व्हाट इज योर नेम? शुभम पटेल। अब तुम भी इस सेंटेंस को बोल दो, हमें सुनाई देना चाहिए। गेट गोइंग बढ़ते चल। वेरी गुड। अब ये तुम्हारे लिए ताजिया मुझे मिलता। अब इन बच्चों में से इसी वाक्य को के साथ कुछ क्रिएटिविटी करके ये बच्चे बताएंगे, प्रैक्टिकल सेंटेंस बना के बताएंगे, तुम सुनना, और अगर ना सुनाई दे तो तुम इसमें कम अगेन बोलना। ओके सर। तो हम उस बच्चे के पास ले जाएंगे इसको मोबाइल, या बच्चे को इधर बुला लेंगे, वो यहाँ आके बोलेगा अगर कुछ नई चीज लगे तो। कोई क्रिएटिविटी करना चाहता है?
Yes, please. Okay. Rohit Sharma is losing the game as a cat boy. रोहित शर्मा गेम को हार रहा है तो मैंने कहा advantage। सुनाई दिया नीता? नो क्लियरली नहीं सुनाई दिया मेरे को। सामने आना नहीं है, तुम्हें पीछे ही रहना है, या बल्कि इधर आ जाओ तो उनको ये देख के लगेगा कि हाँ कितना छोटा सा बच्चा है। हेलो दीदी। रोहित शर्मा losing the game, I said get going। रोहित शर्मा गेम को हार रहा था तो मैंने कहा बढ़ते चलो। हार रहा था बोल दिया था। हार रहा है नहीं Sorry। हाँ मैं नहीं जाना, वो टेंशन में दे दिया। Sorry, come again with इतना English। सा, इतना सा। Okay। थोड़ा सा चेंज कर Yes। रोहित शर्मा is losing। Sorry। रोहित शर्मा was losing the game। I said get going। रोहित शर्मा गेम को हार रहे थे तो मैंने कहा बढ़ते चलो। थैंक यू। Anybody else? तुम्हारे मन में भी कोई सवाल आ जाए, कोई अच्छा सेंटेंस आए तो तुम जरूर वहां से बोलना, हम लोग सब लोग सुनेंगे। Sidhu Moosewala friend said that you will not get when you will get going in your field, you will not be killed because when you got is no problem. कंप्लीट करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के दोस्त ने कहा तुम अपने फील्ड में आगे बढ़ो क्योंकि जादू का किसान है मास्क। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। और सुन, एक बात और तुम्हें हम बता दें, यहाँ राइट साइड में 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं तुम्हें नीचे स्क्रीन में। Yes। उसको टच करो तो 6 ऑप्शन खुलेंगे जिसमें शो कैप्शन दिखाई देगा, तो उसको ऑन कर लो। तो यहाँ किया ऑन। Yes, sir। Now whatever I am speaking coming on your screen, right? Yes। This is Ashish Shah. I am a teacher of English. People call me English teacher, but I do not call myself a teacher. I call myself a guide, and I guide the students and they speak English. सब लिखा हुआ आ गया। Google good student, good listener, right? So whenever I speak English, everything will be coming on your screen. बट जैसे ही मैं हिंदी बोलना शुरू करूंगा गड़बड़ 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 ऐसा कुछ लिखा हुआ वहां है। वो ऐसे लिखा हुआ है। Google cannot understand Hindi, okay? Google can understand only English. Okay। Yesterday I made one sketch. My mom said get going। कल मैंने एक स्केच बनाया और मेरी मम्मी ने कहा बढ़ते चलो। सर बढ़ते रहो भी तो सकते हैं। The position which you wanna desire. बढ़ते चलो और तुम उस मुकाम पर जरूर पहुंचो जिसकी तुम इच्छा रखते हो। अब इसको हम यहाँ विराम दे देते हैं। इसका दूसरा नकारात्मक अर्थ बताते हैं जो कि गुस्से में बोला जाता है। हाँ, भक्त भी बोल सकते। हाँ, अब सारा नहीं लिख रहे, इसने यहाँ बोला चल निकल निकलो चलो भागो, ये भी बोल सकते हैं गुस्से में। तो आज थोड़ा सा सभी लोग हल्का हल्का सा गुस्सा दिखा सकते हैं क्या? चलिए कोशिश कीजिए यहाँ से शुरू। चल भाग।
इसमें तो कुछ लिखा नहीं। Get going, चलने का। Get going. इसमें थोड़ा सा Get going. But Get going, चल भाग। ठीक है, 10 तो चल निकल। एक तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो। You muddy the water, get going. It's not going to happen here. चलने का। I don't want to meet you. So get going. मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती. चल भाग. Don't teach your grandmother to such as get going. ज़्यादा करना पड़ता चलेगा। Get going, चल भाग. Get going, चलेगा। ये नया बच्चा है लेकिन इसने बिल्कुल क्रोध के भाव को बहुत अच्छी जबलपुरी स्टाइल में व्यक्त किया। तुम भी बोल दो गुस्से में। Get going, चल बढ़। हाँ, good. Brother-in-law. Get going, brother-in-law. I think so, just one silent. अब देखो सोच के देखो, साले एक रिश्ता है लेकिन उसको गाली के रूप में यूज किया जाने लगा है। तो हम ऐसा नहीं है, बता सकते हैं जो अमेरिकन फिल्मों में जो गाली चलती है वो हम बता सकते हैं कि उस भाव को लेकर वो लोग जो शब्द यूज करते हैं वो क्या है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अच्छी लगती नहीं है, लेकिन जो तुम पूछना चाह रहे हो हम उसके लिए बता देते हैं। उसके कई मीनिंग निकल सकते हैं, ये लोग यूज करते हैं एसोल। किसी ने सुना? Yes sir. no sir. इसको तुम साले और बहुत सारी गालियां जो तुम बोलते हो ना वो सब नाम इसको दे सकते। ये एक अक्षर है, ये गाली जो कि इंग्लिश में काफी दी जाए। ऐसे इसका प्रयोग मत करना किसी के साथ। अब हम आज का मुहावरा आपको दे रहे हैं। नहीं तो पहले तो पढ़ के तुम भी बता दो क्या लिखा है ये। A 9 days wonder. वेरी गुड, तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन बच्चों ने सारे बोल दिया, अब तुम सबको सुनना, उसके बाद आखिरी में तुम बोलना। Okay. Now, can anybody guess the meaning of this? हमारे दिन पूरे में अब देखो हमारे मुहावरे में 4 शब्द आ रहे हैं, चांदनी आ रही, लेकिन इसमें कहीं पे भी यहाँ पे तो बल्कि 9 आ रहा है। तो अर्थ निकालना नहीं बेटा, दिस इज रियल इंग्लिश, उसको स्वीकार करना। हमें कभी रियल इंग्लिश नहीं सिखाई गई, इसलिए हमें लगता है कि इंग्लिश कठिन है, वरना इंग्लिश कठिन नहीं। A 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा। 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा। 9 days wonder. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा. 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. 9 days wonder, 4 दिन बेटा ये जो दीदी यहाँ पे आज से ज्वाइन कर रही है ना, इसमें है, उनके लिए थोड़ा जोर से बोला कर दो। Sorry. अच्छा बोल रहे हैं।
हमारे साथ बोलो, a 9 days wonder. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे सॉरी, कितना बिल्डर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। A 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 day wonder, 4 दिन की ये नया बच्चा है, देख के भी गलत पढ़ रहा है इसको। चलो तुम बोल रहे हो उसको। A 9 days wonder, चांद की चांदनी फिर अंधेरी रात। A 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारा सुन उसने सुधार लिया, उसने इतने लोगों को नहीं सुना, तुम्हारा सुना। और तुम्हारा ये सहयोग, अगर तुम यहाँ मौजूद होती ना तो हम तुम्हें टॉफी देते। ये क्लास की प्रोसेस। it's sucks. The bar is The bar is color. अब इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई होगी, लेकिन ये चलता रहेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने में समस्या आ गई है, तो हम इनसे कुछ, हाँ पहले तो हम ये बता दें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ ये होता है कि शुरू में हर काम में बड़ा मजा आता है, और फिर कुछ दिन बाद लगता है अरे यार, हाँ ये भाव 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने कौन सा सेंटेंस लिखवाया था बताइए।